Good morning, class. Welcome again to this lecture of database management system. Up till now, we have seen what do you mean by data, what is information, and what are the different types of database operators. We have also seen what are the different kinds of data models, and what are the classifications or the criteria upon which these data models had been classified, like relational, object oriented, entity relationship, physical, and so on. We have also seen certain examples, and we have seen the diagrams, ER diagram, that is entity relationship model diagram, where we understood what are these models. Then we have seen the database, warehouses, then operational database, and TAB. Then we came to a concept that is SQL, structured query language, and we have seen the commands like DDL commands, DML commands, and DCL commands. DDL, which stands for data definition, DML, which stands for data manipulation, and DCL, that stands for data controlling languages, data control. So these commands we have seen. And the next topic that we have discussed in a very short, and I have said it that we will discuss in the next lecture, that was database design. We also know that we have different kinds of database available, like Oracle, then the DB2, the database by IBM itself, then there is one database that is MS Access, and so many. So SQL is a language which is being used in majority of the databases like Oracle, Informix, MySQL, PLSQL, and so on. So in this SQL we have seen three different kinds of command, that is DDL, DML, DCL. Now we are going to see what are the basics for the designing of a database, or what is database design. So database design means producing a detailed model of a database. It is the process of producing a detailed model for a database. A detailed model मतलब जिसमें सभी कुछ जो हमको चाहिए वो सब वहाँ पर होना चाहिए. It is producing a detailed model of a database. Now, what are the steps in that? The first one is database design objective. Now, what is basic objective behind making any database? ये जो सबसे पहले स्टेप है ये क्या बोलती है? डेटाबेस डिजाइन ऑब्जेक्टिव. अब हमारा डेटाबेस बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? अब हमको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, और वो इंफॉर्मेशन इतनी सारी है कि हर बार जो हमको इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है, और वो कितने तो भी MBs या TBs में इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, और वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है हम लोगों को. इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस प्रैक्टिकली टू स्टोर इट इन अ बुक, टू स्टोर इट इन अ फाइल और लाइकवाइज. तो इसीलिए हम सब लोगों को एक डेटाबेस चाहिए. तो ये तो बेसिक पर्पस हो गया डेटाबेस का. सेकंड पर्पस ये था, ये हम एक्चुअली देख चुके हैं. सेकंड जो पर्पस वो ये था कि हम इतनी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर तो करेंगे, लेकिन ये स्टोर करने के बाद में फिर हमको क्या चाहिए कि ये स्टोर करने के बाद में हम इसको इजीली रिट्रीव कर सके. मतलब जो भी इंफॉर्मेशन की जब हमको ज़रूरत पड़ेगी वो इंफॉर्मेशन हमको वहाँ से मिलना चाहिए. तो ये हो गया उसका सेकेंड पर्पस. थर्ड पर्पस ये हमने देखा था कि डाटा रिडंडेंसी, एक ही डेटा बार बार यूज ना किया जाए. डाटा रिडंडेंसी, सेम डेटा बार बार अगर आप यूज करोगे, मतलब बार बार उसको स्टोर करोगे, तो आपकी वो स्टोरेज स्पेस वेस्ट हो जाएगी. तो हमने देखा था कि जैसे आप टेबल में स्टोर करते हो, एक टेबल में इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट की सारी, और दूसरी टेबल में उसका सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे फिर से स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है. तो इसलिए हमने क्या एक प्राइमरी की का कंसेप्ट देखा था. थोड़ा आपको रिकॉल करना पड़ेगा, गो टू द प्रीवियस वीडियोस, यू विल इजीली अंडरस्टैंड कि डेटा रिडंडेंसी वहाँ पे अवॉइड करनी है. फिर उसके बाद में एनोमोलीज हमने देखी थी. एनोमोलीज मतलब कि मैं अगर कोई फाइल अपडेट कर रहा हूँ और सेम टाइम पे सपोज आपको वो फाइल दिख रही है, तो या तो अपडेटेड दिखना चाहिए या तो फिर नहीं दिखना चाहिए, तो उसको फाइल को लॉक करना. तो ये होती है एनोमोलीज की, आधा अधूरा डिस्प्ले किसी को नहीं मिलना चाहिए. उसके बाद में हमने देखा था इंटीग्रिटी, मतलब जहाँ पर जो वैल्यू है, इंटीग्रिटी, एटमिसिटी, ये सारे कंसेप्ट हमने देखे थे कि अपडेट पूरी तरह से होना चाहिए. उसके बाद में जहाँ पर जो वैल्यू इंसर्ट आना चाहिए वहाँ पर वही वैल्यू आना चाहिए. तो इतने सारे हमारे पर्पस है. दिस आर ऑल द पर्पस फॉर डिजाइनिंग अ डेटाबेस. सो दिस आर द ऑब्जेक्टिव्स की बेसिकली सबसे जो पहला पार्ट है था डेटाबेस डिजाइन ऑब्जेक्टिव, कि हमको डेटाबेस डिजाइन क्यों करना है. तो इतने जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए अभी, इसकी वजह से हमको डेटाबेस को डिजाइन करना है. सेकेंड था डिटरमाइनिंग व्हाट डाटा टू बी स्टोर्ड. अब आपको डेटा कौन सा स्टोर करना है. अब आप बोलेंगे सर डेटा तो कोई भी डाटा, नो, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि आपको इमेजेस स्टोर करना है, आपको वीडियो स्टोर करना है,
आपको PDF फाइल स्टोर करना है, आपको एक्सेल फाइल स्टोर करना है, आपको वर्ड फाइल स्टोर करना है, और किस टाइप का डेटा, मतलब आपको इंटीजर स्टोर करना है, नंबर स्टोर करना है, डेसिमल वैल्यू स्टोर करना है, मैथमेटिकल ऑपरेटर स्टोर करना है, आपको किस तरह का डेटा स्टोर करना है। अब सपोज जैसे हम बात करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, तो यहाँ पर जो हमें डेटा लगेगा वो टीचर्स का डेटा लगेगा, उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उनके वर्क एक्सपीरियंस, उनके नेम, उनके मोबाइल नंबर, उनके ईमेल आईडी, उनके एड्रेसेस, देयर स्पेशल अचीवमेंट्स एंड सो मैनी थिंग्स। उसी तरह से स्टूडेंट्स का हमको डेटा लगेगा। स्टूडेंट्स के डेटा में क्या लेंगे, स्टूडेंट्स, हिज रोल नंबर, द सेमिस्टर विच द ईयर इन विच दे आर एडमिटेड, देयर टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्स बीइंग क्लियर्ड, फिर उनके बैकलॉग्स कितने हैं या फिर उनके रिजल्ट्स क्या थे, देन व्हाट इज स्पेसिफिक अचीवमेंट, इज मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नेम ऑफ द पेरेंट्स, एड्रेस ऑफ द पेरेंट्स, परमानेंट एड्रेस, रेसिडेंशियल एड्रेस एंड सो मैनी थिंग्स। ये हो गया डेटा। फिर एडमिनिस्ट्रेशन को डेटा लगेगा, ये दोनों का डेटा लगेगा ताकि किसका सैलरी कितना है, किसने कितना फीस किया है, कितना बैलेंस है, कौन सी स्कॉलरशिप आती, तो हमको डिसाइड करना पड़ेगा हमको डेटा कौन सा स्टोर करना है। तो वो भी एक फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा कि अगर हमको इमेजेस स्टोर करना है तो हमको वो डेटाबेस चाहिए जहाँ पे हम इमेजेस आराम से रिट्रीव कर सके, या फिर हमको वीडियो स्टोर करना है तो उसके लिए हमको उस तरह का डेटाबेस लेना पड़ेगा। तो यू हैव टू फर्स्ट मेक इट क्लियर, यानी ये पॉइंट हमारा क्लियर होना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ डेटा यू आर गोइंग टू स्टोर, आपको कौन सा डाटा वहाँ पर स्टोर करना है। देन नेक्स्ट इज डिटरमाइनिंग डेटा रिलेशनशिप्स। नाउ वी ऑलरेडी नो द रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स हमने देखी थी 1 to 1, 1 to many to many एंड सो ऑन। रिलेशनशिप्स मतलब क्या होता कि एक उसके डिपेंडेंट है। जैसे सपोज हमने एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल देखा था। सपोज एक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट, और स्टूडेंट के फिर जो क्राइटेरिया है, स्टूडेंट में कौन सी वैल्यू स्टोर है स्टूडेंट्स में, स्टूडेंट का नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसका एड्रेस। अब स्टूडेंट ने एडमिशन लिया किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, तो स्टूडेंट की होगी डिपार्टमेंट से रिलेशनशिप, मतलब 1 to 1 रिलेशनशिप। अब उसके बाद में वही स्टूडेंट ने दूसरा वही डिपार्टमेंट में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आ गए, तो वो होगी 1 to many रिलेशनशिप्स। वही स्टूडेंट ने क्या किया कि वो एक 1 to 1 रिलेशनशिप होगी, लेकिन उसी डिपार्टमेंट में उसने कुछ और पार्टिसिपेट किया तो 1 to many, और ऐसे फिर मैनी टू वन, मतलब एक टेबल की रिलेशनशिप दूसरे के साथ, दूसरे की इसके साथ। ये जो रिलेशनशिप है फिर ये हमको डिफाइन करना पड़ेगा कि हमको रिलेशनशिप्स कौन सी चाहिए, 1 to 1 चाहिए, 1 to many चाहिए, या मैनी टू मैनी चाहिए। ये हमने इन्फॉर्मेशन देखा था, एक स्टोर मैनेजर का एग्जाम्पल देखा था कि आप एक स्टोर में गए हो और फिर आपने ऑर्डर दिया कि आपको कुछ चाहिए, तो वो मैनेजर ने सेल्समैन को मैनेजर को आपने ऑर्डर दिया, आपने भी ऑर्डर दिया, मैनेजर ने भी ऑर्डर दिया और सेल्समैन ने भी ऑर्डर दिया, और किसी एक थर्ड पर्सन ने वो मटेरियल लेके आया वहाँ पर जो कुछ भी था XYZ। तो मैनेजर ने ऑर्डर दिया, आपने दिया, सेल्समैन ने, मतलब मैनी पीपल एक को ऑर्डर दे रहे, तो वो ऑर्डर किसकी, मैनेजर की भी फुलफिली, सेल्समैन की भी, आपकी भी। परचेज तो सिर्फ आपने अकेले, परचेज सिर्फ आपने अकेले नहीं किया, लेकिन जैसे आपने ऑर्डर दिया था, मैनेजर ने सुन के ऑर्डर दिया सेल्समैन को, सेल्समैन ने ऑर्डर दिया किसी और को, उसने लाकर यहाँ पर सर्व किया। तो वो जो ऑर्डर की जो रिलेशनशिप्स होगी वो सभी के साथ है, आपके साथ भी, मैनेजर के साथ भी, सेल्समैन के साथ भी, तो होगी 1 to many। तो हमको इस तरह का पहले स्ट्रक्चर सोचना पड़ेगा कि आपको किस तरह की वहाँ पर रिलेशनशिप्स चाहिए। सो इफ इट इज़ 1 to many, इफ इट इज़ 1 to 1। अब आप बोलोगे सर फिर इससे फ़र्क क्या पड़ेगा डेटाबेस डिज़ाइन में? इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि जब हम डेटाबेस डिज़ाइन करेंगे तो उसमें टेबल्स बनाएंगे, तो हम उसमें कंस्ट्रेंट्स डालेंगे, मतलब प्राइमरी की, फॉरेन की। प्राइमरी की मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसके पहले भी बताया कि अगर मैं बोलूँ कि फ्रॉम द क्लास दिस क्लास TM1 और TM2, रोल नंबर 30 फ्रॉम TM1, तो वो एक ही बंदा है। वही अगर मैं बोलूँ कि प्रकाश फ्रॉम TM1, तो हो सकता है प्रकाश नाम के 10 बच्चे हो। सो मुझे एक ऐसा यूनिक आईडी हर किसी को देना पड़ेगा। या फिर मैं बोलूँगा प्रकाश फ्रॉम TM1 फ्रॉम अकोला, तो अकोला से 15 बच्चे हो सकता है उसमें से 1-2 प्रकाश नाम के भी हो, तो वहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है, तो मुझे एक स्पेसिफिक आईडी सबको देना पड़ेगा। अपना आधार कार्ड है ना, एक स्पेसिफिक आईडी, वो सबका एक है, यूनिक नंबर। तो वो जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो होती प्राइमरी की। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फिर हमको जब रिलेशनशिप पता रहेगी 1 to 1, 1 to many, तो प्राइमरी की कहाँ पर लगाना है, फॉरेन की कहाँ पर लगाना है, टेबल्स कैसे बनाना है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसके हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं। सो फॉर दैट थर्ड थिंग वी हैव टू नो, दैट इज व्हाट इज द डेटा रिलेशनशिप्स। Then next was logically structuring the data. Logically structuring data मतलब logical schema। अब logical schema मतलब क्या होता है, हमने देखा था schema, हमने देखा था फिजिकल होता है, लॉजिकल होता है। अब लॉजिक मतलब किस तरह से आप स्टोर कर रहे हो, मतलब किसका किससे क्या रिलेशन है, वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का लुकआउट है कि क्या रिलेशन है, उसको आप डेटा किस तरह से स्टोर कर रहे हो, उसके बीच में लॉजिक क्या है, उनके बीच में किस तरह का रिलेशन है। तो ये जो पार्ट आता उसमें फिर आप क्या मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज करोगे, तो ये हो गया लॉजिकल।
ऑल दिस इज लॉजिकल. वी हैव ऑलरेडी सीन व्हाट डू यू मीन बाय स्कीमा. स्कीमा हमने देखा था ना, स्कीमा मतलब एक स्ट्रक्चर है, स्केलेटन है. जैसे एक अलमारी है तो उसमें आपने अलग अलग खंड बना के रखे हैं, तो वहां पर आप किस तरह से रखते हो ताकि आपको रिट्रीव करने को आसान हो जाए. तो उसके बीच में आपने क्या लॉजिक यूज किया, क्या रिलेशनशिप यूज किया, तो वो हो गया लॉजिकली स्ट्रक्चरिंग द डेटा. सो यू मस्ट नो दिस थिंग. तो लॉजिकल स्कीमा आपको पता होना चाहिए. तो ये जो अब तक हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे, जो हमने डिजाइन के जो कंसेप्ट देखे, उसमें अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको डेटा कौन सा स्टोर करना है, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, और लॉजिकली डाटा को लॉजिकल स्कीमा आपको पता होना. देन नेक्स्ट वन इज एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल या फिर ईआर डायग्राम. वो जो हमने मॉडल बनाया था ना, एक मैनेजर गोज टू द सेल्स, फिर उसके 3 ऑब्जेक्टिव्स, तो वो एंटिटी और उनके बीच का रिलेशन, तो हमको ये रिलेशंस क्लियर कट पता होने चाहिए. अगर ये रिलेशंस हमको पता है तो इसके बेस पे मॉडल चूज कर सकते हैं. अब बेसिकली डाटाबेस डिजाइन मतलब क्या करना है, आप स्पेसिफिक मॉडल चूज करना है और उसमें फिर आपको डेटाबेस क्रिएट करना है. तो अगर आपको सपोज एंटिटी और उसके बीच के रिलेशनशिप्स चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल चूज कर सकते हो. इसलिए आपको ईआर डायग्राम बनाते आना चाहिए. हम आगे जाके ईआर डायग्राम कैसे बनाते ये भी देखने वाले. वी आर गोइंग टू सी फॉर दैट इज हाउ यू मेक द ईआर डायग्राम्स, हाउ डू यू प्रोड्यूस दिस ईआर डायग्राम्स. वी आर गोइंग टू सी इट फर्दर. ये आगे हम लोग देखने वाले ही है कि ईआर डायग्राम कैसे बनता है इन द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल. सो यू मस्ट नो दैट ईआर मॉडल इट इज जस्ट लाइक अ फ्लो चार्ट. अब देखो फ्लो चार्ट तो आपको सभी को पता ही होगा. जैसे उसमें कुछ सिंबल्स रहते हैं, सम सिंबल फॉर डिसीजन, सम सिंबल फॉर स्टेटमेंट, सम सिंबल फॉर क्वेश्चन, देन सम सिंबल फॉर प्रोजेक्ट. ट्रायंगल यूज होता, स्क्वायर यूज होता, देन ओवल शेप यूज होगा, फिर उसके बीच में एरोज यूज होंगे. तो रिलेशनशिप डायग्राम तो इट इज द सेम कि वो उसमें हमने एक एक एंटिटीज रख ली, तो उनके बीच का जो रिलेशन है इट इज प्रिडिक्टिंग दैट रिलेशनशिप. तो फिर हमको पता होना चाहिए रिलेशनशिप मॉडल, दैट इज ईआर डायग्राम हमको बनाना पड़ेगा. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. क्या बोलते हैं इसको, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज ईआर डायग्राम. तो हमको क्या क्या था, बेसिक पर्पस पता होना चाहिए, आपको क्या डाटा स्टोर करना है, उनके बीच में रिलेशनशिप्स क्या है और किस तरह से आप स्टोर कर रहे हो, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, दैट इज द लॉजिकल स्कीमा, द स्केलेटन पार्ट बट द लॉजिकल स्कीमा. देन द रिलेशनशिप डिपेंडेंसी, 1 to 1 है, 1 to many, और आप किस तरह से प्रोक्योर कर रहे हैं, हाउ यू आर गोइंग टू शो इट, हाउ यू आर गोइंग टू डिस्प्ले इट. तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, दैट इज एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल. एंड द लास्ट वन इज नॉर्मलाइजेशन. नाउ दिस इज नॉर्मलाइजेशन मीन्स, नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होगा कि जो एडिशनल जो चीज़ें, अवॉइड एनोमलीज. एनोमलीज मतलब क्या होता कि जैसे सपोज मैंने कुछ डाटा अगर डिलीट कर दिया, तो मैंने एक टेबल में से डिलीट किया लेकिन 3 टेबल में वो है. सपोज मैंने एक इन्फॉर्मेशन स्टोर की थी, माई नेम, माई मोबाइल नंबर and my address and my educational qualification. So I am teaching in mechanical engineering department, but I have been given one subject of another department, so I am also teaching to that department. Again I am teaching to one more department, but what happened कि वो department का subject अब मेरा खत्म हो गया, तो that department doesn't need my data. तो उन्होंने किया कि वहाँ से उसको delete किया. अब वहाँ से delete किया लेकिन दूसरे department में मेरा data अभी भी है, या फिर उन्होंने वहाँ से delete किया तो सभी department में से delete हो गया. तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए. अपडेट, इंसर्शन और डिलीट एनोमलीज आती है. जैसे मैंने सपोज एक छोटा सा एग्जांपल बता था कि अगर सपोज हमारा कॉलेज शुरू था और आपको 5 बजे के बजाय एक दिन 5:30 के बजाय 4:30 को छुट्टी होने वाली है, तो मैंने आगे एक क्लास में बता दिया कि आप लोगों का आज कॉलेज सिर्फ 4:30 तक है. ठीक है, आप लोगों को तो बता दिया, तो आप लोग 4:30 को चले गए, लेकिन दूसरी क्लास को नहीं बताया, तो फिर उनको तो पता ही नहीं. दैट मीन्स आई एम अपडेटिंग सम इन्फॉर्मेशन, लेकिन ये सभी की अपडेट होनी चाहिए. या फिर आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट कि दैट इज कॉल्ड एज एनोमलीज, कि अगर अपडेट होगी है तो सब जगह पे. या फिर मैंने बताया कल आपको सबको 10 बजे आना है, तो मैंने 2 स्टूडेंट को 10 बजे आने का बोला, 2 स्टूडेंट को बोला ही नहीं. या फिर मैंने 2 स्टूडेंट को बोला था 10 बजे आने का और एक को बता दिया कि नहीं भैया आप 10 बजे नहीं आना है, आपको 11 बजे ही आना है, लेकिन दूसरे स्टूडेंट को बता ही नहीं पाया. सो ये जो होती है डेटाबेस में, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए. दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मलाइजेशन. और इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्राइमरी की रखते हैं, एक की रखते हैं और उसकी रिलेशन रखते हैं. कि जैसे यहाँ पर मैंने मेरा नाम सपोज एक की प्राइमरी की रखी रोल नंबर 1, तो TM1 और TM1 1, TM102, TM101 ये एक नंबर हो गया, या फिर TM201 ये एक रोल नंबर है. अब TM101 की इंफॉर्मेशन मैंने एक टेबल में स्टोर करी और नेक्स्ट टेबल में क्या किया, सिर्फ TM101 लिखा और बची इंफॉर्मेशन स्टोर करी. अब क्या बोलूंगा कि TM101 जहां पर भी उसका ये डेटा डिलीट करो, तो वो जहां जहां पे भी टेबल में TM101 है वो सारी इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाएंगी. तो ये TM1 क्या हो गया, तो ये हो गई थी प्राइमरी की. तो अब कई बार सिर्फ TM1 से काम नहीं चलता, तो हमको और एक की लगानी पड़ती, दैट इज फॉरेन की.
तो ये जो सारी प्रोसेस है कि एनोमलीज अवॉइड करना है इन अपडेट, इंसर्शन एंड डिलीट, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मलाइजेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मलाइजेशन। सो आई थिंक इट इज क्लियर दैट इज व्हाट प्रोसेस ऑफ डूइंग डेटाबेस डिजाइन। मतलब डेटाबेस डिजाइन में आपको क्या क्या करना है? सबसे पहले यू शुड नो द डेटाबेस डिजाइन ऑब्जेक्टिव। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए व्हाट डाटा हैज टू बी स्टोर्ड, देन द रिलेशनशिप्स वन टू वन, वन टू मैनी एंड सो ऑन। देन यू शुड डिसाइड अ लॉजिकल स्ट्रक्चर, दैट इज अ लॉजिकल स्कीमा फॉर इट। देन यू मस्ट नो द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, वो डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ दैट इट विल बी इजियर फॉर यू टू चूज अ स्पेसिफिक मॉडल। Then normalization, that is avoid anomalies, and I've already explained you what do you mean by this anomalies. So these are the basic steps in designing a database. तो अब database design के steps तो हमको पता चल गई। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द स्टेप्स और हाउ अ डेटाबेस इज डिजाइन और व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर डिजाइनिंग अ डेटाबेस और हाउ यूजुअली डिजाइन अ डेटाबेस फॉर अ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन और वॉट एवर इट इज, देन यू हैव टू राइट ऑल दिस पॉइंट्स, दैट इज इट्स पर्पस, व्हाट डाटा हैज टू बी स्टोर्ड, रिलेशनशिप, लॉजिकल स्ट्रक्चर, ईआर डायग्राम, नॉर्मलाइजेशन एंड सो मेनी थिंग। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट आर द मेजर स्टेप्स इन सेटिंग अप डेटाबेस। ठीक है, अब ये पार्ट तो हमने कर लिया, लेकिन ये तो डिजाइन की बात है कि डेटाबेस की, तो एक डिजाइन एक पार्ट हो गया। लेकिन अब कहीं पे हमने बोला कि हमको डेटाबेस सेट करना है, मतलब एक इंस्टीट्यूशन ने हमको बताया कि हमको एक डेटाबेस बनाना है हमारा, तो उसको सेट करना बोलते हैं। सेट करना मतलब क्या होता कि जैसे सपोज मुझे एक प्रोजेक्ट था कि वो एक छोटा सा काम है, सपोज कि आपको आपके घर की साफ सफाई करनी है, तो आपने क्या किया, आपने झाड़ू उठाया, धीरे धीरे साफ सफाई शुरू की, फिर दो चार लोग ज्वाइन हो गए, ये आगे वो हो गया, आपने इसको ये बताया उसको बताया और सब लोग सफाई में लग गए, और फिर उसके बाद में पूरा कंप्लीट होने के बाद में आप वहाँ से निकल गए। अब वो रेगुलरली उस तरह से सफाई करते रहेंगे। तो आपने शुरुआत किया, इनिशिएट किया, उनको गाइड किया, उनको बताया, वो पूरा वर्क कंप्लीट हो गया, फिर आप बाहर निकल गए और फिर आपने उनको समझा दिया और वो कंटिन्यू कर रहे हैं, और बीच में कुछ प्रॉब्लम आता तो फिर आप उनको गाइड करते हैं। तो जैसे प्रोजेक्ट का होता है ना कि शुरू किया, रन किया प्रोजेक्ट को, उसके बाद में हैंड ओवर किया, फिर उनको एक्सप्लेन किया, फिर मेंटेनेंस के लिए आप रहे और बाद में फिर आप दूसरे प्रोजेक्ट में लग गए। तो ये जो होता है ये होता है बेसिकली सेटिंग, उसको सेट करना। जैसे अपने यहाँ पे अपन टीवी लगाते, केबल कनेक्शन लेते, तो वो आता, टीवी लगा देता, वायर लगा देता, केबल कनेक्ट कर देता, अपने को बता देता कैसे क्या ऑपरेट करने के, नहीं फिर वो चले जाता, हम उसको यूज़ करते हैं। लेकिन फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो हम उसको कॉल करते हैं। तो ये जो हो गया, ये हो गया पूरा सेटिंग, मतलब वो सेटअप बनाना पूरा। तो डेटाबेस बनाने के सेटअप के लिए हमको क्या चाहिए? रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस मतलब एग्जैक्टली द थिंग कि आपको किस चीज़ के लिए डेटाबेस बनाना है, आपका बेसिक उसके पीछे पर्पस क्या है, आपको कौन कौन सी वहाँ पर चीज़ें लगने वाली है, आप कौन कौन सा डाटा वहाँ पर यूज़ करने वाले हो। आपको एक इंडस्ट्री के लिए बनाना है, एक फैक्ट्री के लिए बनाना है, या फिर आपको एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बनाना है, आपको किसी सीए के ऑफिस के लिए बनाना है, या आपको किसी ऑडिट के लिए बनाना है, आपको कोई एक सर्वे करना है, या फिर कुछ स्टेटिस्टिकल डाटा बनाना है। वॉट एवर इट इज़, व्हाट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट, कि रिक्वायरमेंट क्या है और कितना डेटा है। आपका डेटा 10,000 लोगों का डेटा है, 20,000 का है, 1,000 का है, 5,000 का है, हाउ मच यू कैन एक्सपेंड ऑन इट। फिर आपके पास सिस्टम्स क्या क्या हैं, हमको सर्वर्स क्या लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें दैट इज कॉल्ड एज रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो स्टेप्स में सबसे पहले हमने रिक्वायरमेंट देखी। जैसे हम दुकान में जाते हैं ना कुछ कपड़े खरीदने, तो दुकानदार हमसे जरूर पूछता कि साहब आपको क्या चाहिए, ट्राउजर्स है मतलब फुल स्लीव्स चाहिए, हाफ स्लीव्स चाहिए, कलर दिखाओ, वाइट दिखाओ, प्रिंटेड दिखाओ, चेक्स दिखाओ, फलाना दिखाओ, ढिमका दिखाओ, ऐसा वैसा और सारी चीज़ें। फिर उसके बाद में आपका बजट कितना है, फिर आपको ये क्वालिटी चलेगा क्या, ये प्रोडक्ट चलेगा क्या। तो ये सारी चीज़ें ये होगी बेसिकली रिक्वायरमेंट एनालिसिस। आपको ये सब रिक्वायरमेंट कलेक्ट करना है और फिर उसको एनालाइज करना है। ओके तो ऐसा ऐसा फॉर दिस when you collect all this requirement then you come to conclusion कि ओके इस तरह का मुझे डेटाबेस बनाना है। देन कंसेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन, कंसेप्ट जनरेशन। जब आपके समझ में आ गया कि आपको एंटिटी रिलेशनशिप बेस्ड टाइप का बनाना है, जैसे ये इसके ऊपर डिपेंड है, ये एट्रीब्यूट उसके ऊपर डिपेंड है, वो एट्रीब्यूट उसके ऊपर डिपेंड है, तो फिर आप एक ऑब्जेक्ट चूज कर सकते हो। जैसे बेसिकली जो मैक्सिमम देख रहे हैं RDBMS, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस, RDBMS, MS स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट सिस्टम। तो RDBMS की हम बात कर रहे हैं, तो अगर उसमें रिलेशंस काफ़ी है, वन टेबल इज डिपेंडेंट ऑन अनदर, अनदर इज डिपेंडेंट ऑन अनदर, या फिर उनके बीच में कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, इसलिए हमको रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं। तो ये चीज़ फिर आप पहले कंसेप्ट बनाओगे कि हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह का एक डेटाबेस बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज कंसेप्ट जनरेशन। तो पहले आपने एक कंसेप्ट बनाया कि ओके दिस शुड बी द आवर रिक्वायर्ड डेटाबेस। देन लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन, बस ये जो पार्ट आ गया था डेटाबेस डिजाइन, इसमें हमारे सारे के सारे चीजें कवर हो जाती। मतलब अब हमने क्या किया, पहले हमने रिक्वायरमेंट गैदर करी,
उसके बाद में हमने कंसेप्ट गना है, और फिर जो भी ऊपर हमने डेटाबेस डिज़ाइन के सारे पॉइंट्स देखे थे, पर्पस, रिक्वायरमेंट, रिलेशनशिप, स्कीमा, ग्राफिकल, एनएमएलईज, वो सब इसके अंदर आ गए। मतलब अब आपने फिर पूरा का पूरा डेटाबेस वहाँ पर डिज़ाइन कर दिया, डिज़ाइन फिनिश कर दिया। तो सबसे पहले आपने रिक्वायरमेंट गैदर किया, फिर आपने कंसेप्ट बनाया, वो रिक्वायरमेंट को एनालाइज करने के बाद में यू केम टू अ पर्टिकुलर कंसेप्चुअल लेवल, योर अंडरस्टैंडिंग इज बिल्ड अप टू दैट लेवल, सो दैट you up to some level, so that you can think of a particular database, a kind of model which you can use there, maybe object oriented, entity relationship or whatever kind it is, relational database। वो आपके ख्याल में एक कंसेप्ट आपने बनाया कि ओके like a blueprint you have created, then after that you have actually creating the database। उसके बाद में फिर आपने वो डेटाबेस बनाया, you have actually created that particular database, and after creating that database you have created all the things। उसमें फिर आपके स्कीमाज आएंगे, स्कीमा रिफाइनमेंट, दैट मीन्स व्हाट इज द डिज़ाइन, उसको किस तरह से डिज़ाइन करोगे, उसके बीच में रिलेशनशिप्स क्या रहेंगे। मतलब ये जो डिज़ाइन का जितना भी पार्ट हमने देखा है, ऑल दिस पार्ट इट विल कम इनटू दिस पोर्शन, दैट इज डेटाबेस डिज़ाइन। दैट मीन्स इन स्टेप्स इन सेटिंग अप डेटाबेस एंड डिज़ाइनिंग डेटाबेस, ये एक जैसी ही लगती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। स्टेप्स में क्या, डेटाबेस अगर आपको सेटअप करना है तो उसमें डिज़ाइनिंग एक पार्ट रहेगा, और डिज़ाइनिंग पार्ट में वो सारी चीज़ें रहेंगी जो हमने यहाँ पर देखी हुई है। तो डिज़ाइनिंग में सेटअप भले ही ना आए हो, लेकिन आपको डेटाबेस सेटअप करना है तो उसमें डिज़ाइनिंग एक पार्ट ज़रूर रहेगा। तो यहाँ पे हमने ये सारा डिज़ाइनिंग कर चुके हैं। अब उसके बाद में हमने आया था स्कीमा रिफाइनमेंट। तो स्कीमा वी ऑलरेडी नो, दैट मीन्स द स्केलेटन। रिफाइनमेंट मतलब नॉर्मलाइजेशन। आई हैव ऑलरेडी टेल यू व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मलाइजेशन। अगेन वी आर गोइंग टू सी दिस इन डिटेल। इसके काफ़ी सारे फॉर्म्स हैं, 1F दैट इज 1NF 1 नॉर्मल फॉर्म, 2 नॉर्मल फॉर्म, BNCF दैट इज बॉयंस कोड नॉर्मल फॉर्म। तो ये सारी चीज़ें, ये मतलब क्या गया होता कि आपको प्राइमरी की कौन सी चाहिए, वो कुछ उस पर डिपेंड रहता। तो ये अभी तो ये आगे हमको थ्योरी में और आने वाला है नॉर्मलाइजेशन, तो वहाँ पर हमको और डिटेल में समझ में आएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हमारे लिए इतना समझना ज़रूरी है कि नॉर्मलाइजेशन आपको क्यों चाहिए, ताकि आपको एनोमलीज अवॉइड करनी है। और एनोमलीज का मतलब क्या होता है कि एक जगह से अगर डाटा डिलीट किया है तो वो हर जगह से डिलीट होना चाहिए। अगर आपका एक टेबल में एक डाटा आपने अपडेट किया तो वो सब जगह पे अपडेट होना चाहिए। अगर एक कुछ इन्फॉर्मेशन आपने कुछ ऐड करी तो वो सब जगह पे शो होना चाहिए। कुछ आपने इंसर्ट किया तो वो हर जगह पे इंसर्ट होना चाहिए उससे रिलेटेड। ये सारी जगह, जैसे सपोज आपने एक एजुकेशनल, आपने कोई बहुत बड़े अचीवमेंट किया तो आपके कॉलेज को पता होना चाहिए, घर पे पता होना चाहिए, रिलेटिव्स को पता होना चाहिए, दुनिया को पता होना चाहिए, पूरे वर्ल्ड को। सो दैट इज द कंसेप्ट बिहाइंड इट, कि वहाँ पर उस तरह के टेबल्स में जहाँ जहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है दैट इट हैज़ टू बी अपडेटेड। और वहाँ पे अपडेट में, एडिट में और डिलीट में और इंसर्ट करते टाइम ये क्रिएट होती जनरली कि एक टेबल में से हो जाता, लेकिन आपने रिलेशनशिप ऐसी बनाई कि दूसरे टेबल में से डेटा डिलीट ही नहीं हुआ। तो ये सब प्रॉपरली होना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन, दैट इज अवॉइड एनोमलीज। उसके बाद में आता फिजिकल डेटा डिजाइन, दैट इज इंडेक्स, क्लस्टर, स्टोरेज डिवाइस। ये तो एकदम सिंपल है, इंडेक्स, क्लस्टर और स्टोरेज डिवाइस। इंडेक्स मतलब जैसे देखो, अगर मुझे सपोज एक प्रैक्टिकल रिकॉर्ड मैंने लिया, आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, और मुझे उसमें चेक करना है 10वें नंबर का प्रैक्टिकल कहाँ पर है, तो मैं इंडेक्स देखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 10th नंबर का प्रैक्टिकल, उसका नाम क्या है, उसके आगे लिखा होगा और किस पेज पर है। तो दैट इज सिंपल, सेम कंसेप्ट वो भी उठाकर यहाँ पर लेके आए कि आपने क्या किया, डेटाबेस का एक इंडेक्स बनाया, डेटाबेस में इंडेक्स बनाया कि ठीक है ओके, आपने सपोज 5000 टेबल बनाए या फिर आपने 500 टेबल बनाए। चलो मान लो आपने सिर्फ 50 टेबल बनाए, तो पहले टेबल का नाम क्या है, दूसरे टेबल का नाम क्या है, तीसरे टेबल का नाम क्या है, हर टेबल के आपने नाम रखे हैं। उसके बाद में पहले टेबल को आपने 1 बोला, 2 बोला, 3 बोला, लॉजिकली कुछ तो भी दिया वो टेबल का, तो आपने एक इंडेक्स बनाया, टेबल नंबर 1, नेम XYZ, पेज नंबर दिस, सिर्फ इतना ही लिखा। तो अब यहाँ पर हमने क्या करेंगे, जब हमको सर्च करना होगा कि भैया हमको सपोज XYZ की इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेंगी, तो हम पूरे टेबल्स ढूंढेंगे क्या, नहीं, हमको सिर्फ एक ही टेबल ढूंढना है XYZ। तो वो XYZ टेबल आपको कहाँ पर मिलेगा, तो उसके लिए आपको इंडेक्स चेक करना पड़ेगा कि ओके ये इंडेक्स में दिख रहा है, पेज नंबर 1 है और ये पेज नंबर 1 पे जो स्टोर है टेबल दैट इज XYZ। तो वो इंडेक्स मतलब आपको वहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो सेम कंसेप्ट वो हो जाता है इंडेक्स का, सिर्फ अभी थोड़ा मॉडिफाइड ऐसा होता है कि यहाँ पर क्लस्टर्ड इंडेक्स आते हैं एंड देन इंडेक्सिंग इज लाइक एन इंडाइसेस, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती है, बट इट इज़ द सेम कंसेप्ट। ये इसी तरह का कंसेप्ट है जो मैंने अभी आपको बताया, जो हर चीज़ में होता, बुक्स में होता, घर पर होता, दुकानों में भी होता कि ओके ये देखिए एक तरह की मेडिसिन ये यहाँ पर है। तो अब आपको क्या है, आपको देखना है कि आपका इंडेक्स
मतलब अब ये स्टोरेज का पार्ट है एक्चुअली, आपने डेटाबेस डिजाइन भी कर लिया, नॉर्मलाइज भी कर लिया, सब कर लिया, लेकिन अब आप उसको स्टोर कैसे करेंगे? अब आपके सब कुछ रेडी है, स्केलेटन वेलेटन अलमारी डेटा वेटा सब, आप स्टोर कैसे करेंगे? तो आप बोलेंगे ओके आई विल हैव वन इंडेक्स फॉर दिस XYZ थिंग। अब उसके अंदर क्लस्टर मतलब उसको ग्रुप करना, जो एक सारी जैसी चीज़ है उसको मैं क्लब करूंगा, क्लस्टर्ड इंडेक्स बनाऊंगा। क्लस्टर्ड इंडेक्स मतलब 1n1, इसमें फिर 1n1 में 1n.1 लाइकवाइज, तो उसको एक साथ ग्रुप करूंगा, जो सिमिलर डाटा है उसको एक जगह पे रखने की कोशिश करूंगा। और स्टोरेज डिवाइस मतलब जहाँ पे मैं डेटा को स्टोर कर रहा हूँ। सो वेयर डू यू बेसिकली स्टोर डाटा? यू स्टोर द डाटा इन एन हार्ड ड्राइव, यू स्टोर डाटा ओवर सर्वर्स एंड वेयर हाउ इट इज बीइंग स्टोर्ड, तो वहाँ पे कुछ स्ट्रिप्स रहती, कुछ बेसिकली रहता ना, फाइनली डाटा स्टोर कहाँ पे होगा एंड इन व्हाट फॉर्म इट इज बीइंग स्टोर्ड, तो वहाँ पर जो डेटा है वो स्टोर हो जाएगा। सो दैट इज इंडेक्स, क्लस्टर्स एंड स्टोरेज डिवाइस। तो वो सेटअप में वो हो गया। अब उसके बाद में लास्ट पार्ट आता है, दैट इज ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ओके, सपोज हमने डेटाबेस तो बना लिया, ये सारी प्रोसेस कर ली, अब हमको क्या करना है? उसको ऑथेंटिकेट करना है, मतलब कि अगर कौन उसको लॉगिन कर सकता, कौन चेक कर सकता, तो व्हाट वी हैव टू डू इन दैट, अगर हमको देखना है कि हमने सही से डाटा इंसर्ट किया है या नहीं किया है, वो आगे और आता टेस्टिंग और वैलिडेशन। ऑथेंटिक मतलब कि बिल्कुल ये सही है करके, और ऑथराइज मतलब कि इसको ऑथोरिटी दी गई है, कौन उसको चेक करेगा। जैसे मैं अगर एडमिन लॉगिन से सपोज मुझे आपके मार्क्स, जैसे अगर मैंने सपोज एक जगह पे आपके मार्क्स स्टोर करके रखे और आपको मैंने वो डिस्प्ले किया है मार्क्स, तो आपको क्या रेट होंगे? सिर्फ आप आपके मार्क्स देख सकते हो, आप आपके मार्क्स एडिट नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर आपको कुछ क्वेरी आती तो यू विल कम टू मी, आई विल चेक इट अगेन, और मुझे लगा कि ठीक है आपके मार्क प्लस या माइनस करना है, तो विथ माई लॉग इन आई कैन डू इट ऑन अ सेम पोर्टल, उसी पोर्टल पर मैं कर सकता हूँ। सो दैट इज एन ऑथोरिटी। और वो ऑथोरिटी मुझे है, ये कैसे पता रहेंगे इनको? ये ऑथेंटिकेट करेंगे, मुझे कुछ तो भी एक स्पेसिफिक एडमिन लॉगिन से ऐड किया हुआ रहेगा, कि मुझे ऐड किया रहेंगे, एक टेबल रहेगा एडमिन, और मैं जैसे ही बोलूँगा मुझे एडमिन लॉगिन करना है, तो जाके डेटा वहाँ पर चेक करेगा कि ओके ये जो पर्सन है XYZ, ये एडमिन लॉगिन में ये ID पासवर्ड डाला, तो इज इट राइट और रॉन्ग। अगर उनको लगा सही है तो मतलब वो ऑथेंटिक पर्सन है, और अगर वो ऑथेंटिक पर्सन है तो उसको फिर वो एडमिन लॉगिन के अंदर जितने भी ऑपरेशंस कि हमने ऑथराइज किए, अब वो एडमिन पर भी डिपेंड करता है कि हो सकता है सिर्फ मुझे इतनी ऑथोरिटी दी जाए कि मैं सिर्फ आपके मार्क्स चेंज कर सकूं, लेकिन और कोई सुपर एडमिन अगर मैंने बनाया तो उसको ऐसी ऑथोरिटी देंगे कि वो आपके सब्जेक्ट भी चेंज कर सके। तो ऑथेंटिक मतलब सबसे पहले आपको ऑथेंटिक करना मतलब कि ओके आपको बताना कि अप्रूव करना कि ओके यू आर ए पर्सन हु इज हैविंग स्पेसिफिक ऑथोरिटी। और ऑथोरिटी मतलब क्या होंगे कि एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए वो ऑथोरिटी, फिर हमको वो डिजाइन करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा सेफ्टी का पार्ट। So these are the steps in which we cover the steps in setting of a database. So database design is a concept in a steps. जो सेट करना है डेटाबेस वो इतना है, तो उसमें एक पार्ट है डेटाबेस डिजाइन। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। तो ये वीडियो आप अच्छे से देखो और फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड we'll discuss all the things which you understood, which you haven't understood, which you have query, and all the things in the coming video lecture. And I'm looking forward to see you all in the Google Meet. Till then, thank you class. Good day.